Hello, am I audible to everyone? Yes, sir. Okay, so we are concluding on this salt analysis. In the last class, we had seen about we have seen the reactions of carbonates and bicarbonates and sulfites, right? So both of them give this baryta water test and lime water test. Okay. So how we distinguish between these two? So for that we use this redox reactions because sulfite in sulfite ion the sulfur is in +4 oxidation state, but it can go higher. Okay. That is why when we use redox reaction, it can show some color change with when reacted with oxidizing agents, okay, like KMnO4 and FeCl3 and K2Cr2O7 CrO4. All of this we saw yesterday. Okay, so there are some more reactions of the sulfite that we are going to cover today. Okay. So this is one reaction which is Dorda alloy reaction. Okay. Dorda alloy is an alloy of zinc, aluminum, and so they react with a non-metal, sorry, they react with a base and they form zincate along with hydrogen. And this is a strong reducing agent. Okay. So Dorda alloy, these reactions are very important. So just now we saw in the previous day, we concluded with this discussion how this SO2, H2S, these have a tendency to get oxidized. When reacted with oxidizing agent, they are going to get oxidized and reducing the whatever oxidizing agent we have used. Similarly, there is some reducing reactions also. These sulfides have a reducing tendency also, and in the presence of Dorda alloy, these anions, this SO2, SO3 2 minus, NO2 minus, NO3 minus. Okay. These anions act like a oxidizing agent. Okay. Oxidizing agent. So in the previous example, they were acting like reducing agents. Here they are acting like oxidizing agents with this zinc or aluminum or copper, these three metals. Okay. So like this. So they are going to get reduced like this. S is changing from +4 to -2. Similarly, SO2 also +4 to sulfur is changing to -2. Similarly, nitrogen here is changing from +3 to -3. Here nitrate is changing from +1 to. Is this reaction clear to everyone? Hmm? Hello, I'm not able to hear. इसमें कुछ डाउट है किसी को? No, sir. The next reaction is your reaction with sodium nitroprusside. Sodium nitroprusside. So why this? From where this word prusside is coming? Prusside is coming from the word prussic acid. Okay. So HCN is called as prussic acid because this particular compound has 5 ions of cyanide in this, and there is also NO, nitro. Okay. That is why this particular compound is called as sodium nitroprusside. Okay. If you react it with ZnSO4, it is going to turn into light pink. Okay, this sodium ion is going to be replaced by the zinc ion, and that is how you get this color of light pink. Okay, and on reaction with moist SO2, it is going to form a red colored compound whose composition is not yet known to the not known to us. Okay. So this reaction is not very important. This reaction was very important. Vaporize at all cost. ये देख सकते हैं बस. One more important test when we are testing this sulfite ion. So in that solution,
sulfide ion and thiosulfate ion should be absent. Otherwise, they are going to give us wrong results. For example, on reacting with HgCl2, we are going to get, if sulfide ion is present, we will get HgS. If thiosulfate is present, that is going to form mercuric thiosulfate, and on standing, on heating, it is going to get reduced to HgS, which is again black. ठीक है? तो HgCl2 के साथ हम लोगों ने सल्फाइड का देखा था कलर चेंज पिछले दिन. Anyone remembers? बोलो. ऐसा रिएक्शन था. तो we are going to get wrong results. यहाँ पे हम लोग को black PPT दिख जाएगा और our conclusion might be false. तो इससे हम लोग क्या करते हैं, पहले ही सल्फाइड आयंस को और इसको हटा देते हैं. Another test is your Fuchsin's test, or it is also called as Schiff's reagent test. Okay. So Schiff's reagent we have seen in organic chemistry already. तो हमारा सल्फेट और SO2 या फिर थायोसल्फेट, सल्फर बेसिकली +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जब होगा, तो वहां पे हमारा ये जो पिंक कलर है स्किप्स रिएजेंट का, वो क्या होता है, कलरलेस हो जाता है. सो दिस इज योर स्किप्स रिएजेंट. तो इसका कलर पिंक से क्या होता है, कलरलेस हो जाता है. और हमने बताया था जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कलर क्यों आता है, बिकॉज ऑफ क्रॉस कंजुगेशन. ठीक है, बहुत सारे पैरेलल बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में जब रहते हैं, तो दैट गिव्स राइज टू कलर. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, ये वाले डबल बॉन्ड. ठीक है, दीज आर इन क्रॉस कंजुगेशन, दिस थिंग. सो दिस गिव्स राइज टू कलर. ठीक है, तो बाय एडिंग SO3 माइनस और SO2 क्या होता है, ये क्रॉस कंजुगेशन गेट्स डिस्टर्ब. यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन अब इसका खत्म हो गया, इस तरह से पैरेलल बॉन्ड आपस में नहीं है. दैट इज हाउ दिस कंपाउंड बिकम्स कलरलेस. इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर. Next reaction is thiosulfate. This is very simple. Just like your SO3 minus, CO3 minus के कार्बोनेट के जैसा रिएक्शन होता है. Similarly, bisulfite का कैसे होता है, सल्फाइड के जैसा रिएक्शन. All bisulfites are water soluble without any exception. Acids के साथ इसका रिएक्शन क्या होता है, SO2 गैस रिलीज करेगा. और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इसके और इसके बीच हम लोग डिस्टिंग्विश करते हैं. लाइम वाटर टेस्ट दोनों देते हैं, लेकिन KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ CO2 हमारा रिएक्ट नहीं करता, SO2 हमारा रिएक्ट कर जाता है. तो वेरी सिंपल. This anion is very very important. Sulfide anion से बहुत साल, I think 2013, 2015, I think last year also some question came in IIT JEE Advanced from the sulfide. Sulfide anion is very very important. सल्फाइड आयन में हम लोग को बहुत सारी चीजें याद रखनी है. अलग अलग वैरायटी ऑफ कलर इसमें आपको मिलेंगे. अलग अलग मेटल्स के सल्फाइड्स का कलर क्या होगा, अलग अलग होगा. तो हम लोग को ये चैप्टर, ये पोर्शन तो सारे हमारे सल्फाइड्स क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल, इनसॉल्युबल. ठीक है, एक्सेप्ट फॉर अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स एंड अमोनियम सल्फाइड. इन 3 सल्फाइड्स को छोड़ के बाकी जितने भी सल्फाइड्स आपको मिलेंगे ऑल आर इनसॉल्युबल इन वाटर. ठीक है, इसके अलावा अगेन ये जो Al+3 और Cr+3, ठीक है, तो ये सल्फाइड सॉल्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करते. तुरंत ये हाइड्रोलिसिस करके अपना हाइड्रोक्साइड्स बना देते हैं. ठीक है, आई थिंक Fe+3 के साथ भी ऐसा होता है. ये जस्ट वंस वेरीफाई दिस. ठीक है, तो जो 3 ब्रदर्स हमने बोला था, तो ये तीनों क्या करते हैं, सल्फाइड्स जनरली बनाते नहीं. ठीक है, मतलब सल्फाइड्स इनका बहुत इजीली हाइड्रोलाइज करके हाइड्रोक्साइड बन जाता है. ठीक है, सो दिस इज सिंपल. ओके, सो सबसे पहला टेस्ट हमारा क्या होगा, टेस्ट विद एसिड. ठीक है,
तो एसिड के साथ रिलीज करने पे ये क्या H2S गैस रिलीज करता है, ठीक है। H2S गैस का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है, सड़े हुए अंडे जैसा स्मेल करता है इसका, ठीक है। रोटन एग लाइक स्मेल होता है। लीड एसिटेट पेपर से हमको पास करो, लीड एसिटेट पेपर, ठीक है। लीड एसिटेट पेपर को आप उस पे रखो इस गैस के ऊपर, तो क्या होता है आपका पेपर ब्लैक हो जाता है, ठीक है। पेपर टर्न्स ब्लैक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PBS, ठीक है। PBS का कलर ब्लैक होता है, उसके कारण इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, H2S का वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इसको कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। इसी से मिलता जुलता एक टेस्ट होता है कैडमियम एसिटेट पेपर का, ठीक है। तो कैडमियम एसिटेट इज येलो इन कलर, तो यहाँ पे आपको क्या मिलता है, आपका पेपर जो है कैडमियम एसिटेट का, तो पेपर इज गोइंग टू टर्न येलो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सिमिलरली अलग अलग कटायंस के साथ आप इसके कंफर्मेटरी टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे Ag2S है, दिस इज ब्लैक इन कलर, PBS is black in color, HGS is black in color, COS is black in color, NIS is black in color. Most of the sulfides are black in color. So you can memorize. Most sulfides are तो जिनके ब्लैक नहीं है उनके बस याद रखो, बाकी सबका ब्लैक हो जाएगा जनरली, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें आता है हमारा कैडमियम सल्फाइड। कैडमियम सल्फाइड इज नॉट ब्लैक, इट इज येलो इन कलर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे कुछ और सल्फाइड्स हैं, उनके कलर दिए हुए हैं। तो ZnS is white in color, sorry, ZnS is white in color, sorry, ZnS is white in color, CDS is yellow, MnS is pink in color, SNS is brown, SNS2 is yellow, Bi2S3 is brown। ये सब हमारे कुछ क्या है, कलर्ड सल्फाइड्स हैं। इसके अलावा आप सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि बाकी जितने सल्फाइड्स होंगे वो क्या होंगे, ब्लैक, ठीक है। ओके, अगेन हमारा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का टेस्ट इधर भी आ जाता है। इससे पहले हमने सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का टेस्ट कहाँ पढ़ा था, इसको याद है? बोलो वाल को। कीटोन के टेस्ट में यूज होता है। इसमें कीटोन कीटोन के टेस्ट में नहीं, आज ही जस्ट हम लोगों ने पढ़ा अभी सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। कौन से अनायन के केस में पढ़ा? SO3 2-। SO3 2- क्या हो रहा था उसमें? कैसे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड यूज हो रहा था? तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड को सबसे पहले हमने क्या किया, जिंक से रिएक्ट कराया। तो सोडियम हमारा सोडियम आयन जिंक आयन से रिप्लेस हो गया, उसका कलर पिंक हो गया, ठीक है। उसको हमने SO2 गैस से जब पास किया तो रेड कलर का अननोन कंपाउंड फॉर्म हुआ। याद आया? तो आप लोग थोड़ा अटेंटिवली सुनो, ठीक है। ओके, तो सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का टेस्ट यहाँ पे फिर से आ गया सल्फाइड आयन के कारण। क्या सल्फाइड आयन क्या करता है, ये नाइट्रो ग्रुप के साथ लग जाता है, इधर आके NOH बना देता है, ठीक है। और इसका कलर क्या होता है, पर्पल या फिर वायलेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा मीडियम क्या होना चाहिए, बेसिक होना चाहिए, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ये टेस्ट शो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि एसिडिक मीडियम में क्या होगा, H2S इज अ वीक एसिड, इज ऑलरेडी अ वीक एसिड। तो क्या होगा, अगर एसिडिक सॉल्यूशन है आपके पास तो फर्दर इसका क्या होगा, आयोनाइजेशन, इसका डिसोसिएशन सप्रेस होगा, ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट के कारण। तो सल्फाइड का कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत लो हो जाएगा अगर हम लोग एसिडिक या फिर न्यूट्रल मीडियम लेते हैं तो, ठीक है। बेसिक मीडियम में ऑन द अदर हैंड बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ बेसिस, तो H+ जैसे ही फॉर्म होगा इट इज गोइंग टू रिएक्ट विद OH- एंड न्यूट्रलाइज टू H2O, तो इक्विलिब्रियम विल बी ड्रैग्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है सबको? बोलो। हेलो। तो इसी तरह से आपका क्या होता है, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हम लोग टेस्ट करा देते हैं बेसिक मीडियम में, ठीक है। देन नेक्स्ट इज योर कैटालिटिक अजाइड टेस्ट। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज BBI
ये सल्फाइड्स के कलर बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI, ठीक है। ये हमने इधर डायग्राम बना के थोड़ा दिखा दिया है। आप देखो ये रेडिश ब्राउन कलर का हमने इसको कलर किया है। रेडिश ब्राउन कलर से इस पे सल्फाइड आयन जब मिला तो ये वायलेट कलर का बना, ठीक है। So this is your sodium nitrochloride test for sulfide ion. So this compound is your this thing N-dimethyl paraphenyl diamide. तो इसको जब आप H2S और FeCl3 के साथ पास करो स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में, तो it forms methylene blue. This structure is very important. You have to memorize this structure. Methylene blue का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इससे जेई में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मिथिलीन ब्लू का कलर क्या होता है? ब्लू होता है ऑब्वियसली। और यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कलर कैसे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको क्रॉस कंजुगेशन दिख रहा है, ठीक है। दिस इज अ क्रॉस कंजुगेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जनरली कलर जब आता है तो दैट इज ओनली ड्यू टू दिस क्रॉस कंजुगेशन, ठीक है। आप जितने भी कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखो, स्पेशली एरोमेटिक वाले, उसमें कहीं ना कहीं आपको इस तरह का क्रॉस कंजुगेशन क्या होगा देखने को मिलेगा, ठीक है। So this is how this reaction is taking place. तो हाँ, this is a redox reaction. Another thing to note here, this is a redox reaction. Yeah. और ये redox reaction कैसे हो रहा है? तो Fe+3 आपका reduce हो रहा है Fe+2. Okay. So this is the oxidizing agent. Okay. तो reduce कौन हो रहा है? Reduce आपका benzene ring reduce हो रहा है. Okay. This is the सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये खुद दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है। दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट। आप लोग इसका चार्ज वगैरह कैलकुलेट करके देखना हर एक कार्बन पे, इस कंपाउंड में और इस कंपाउंड में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, ठीक है। ओके, सो दिस इज योर मिथिलीन ब्लू टेस्ट। इसको वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आल्सो भी है। नेक्स्ट अनायन इज योर थायोसल्फेट अनायन। थायोसल्फेट अनायन हमारा क्या होता है? तो कुछ कटायंस है जिसके थायोसल्फेट क्या होते हैं? वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। बेरियम हो गया Pb+2, Ag+, Ag+2, Cu+, ठीक है। इसको जब आप एसिड से रिएक्ट करो तो SO2 गैस रिलीज होती है और साथ में क्या टर्बिड सॉल्यूशन होता है बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस सल्फर, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर एक टर्बिडिटी आ जाती है बिकॉज देयर इज सल्फर प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको आप टेस्ट कैसे करेंगे? तो जो कटायंस यहाँ पे आपके इनसॉल्युबल पीपीटी बना रहे थे उनके साथ आप टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। Ba+2 के साथ आप कर सकते हैं, इट फॉर्म्स व्हाइट पीपीटी, ठीक है। कैल्शियम के साथ ये सॉल्युबल होता है, बेरियम के साथ सॉल्युबल नहीं होगा, पीपीटी बनेगा, कैल्शियम के साथ डिसॉल्व कर जाएगा। Ag+ के साथ ये थायोसल्फेट बनाएगा। एक्सेस में अगर डालो तो क्या होता है? एक्सेस में अगर आपने AgNO3, अब यहाँ पे देखो, आपने जब कम कॉन्सेंट्रेशन में डाला तो ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स क्यों बनेगा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आप देखो Ag का कितना चाहिए? 1 मोल चाहिए, ठीक है। और सल्फेट का कितना चाहिए? सॉरी, थायोसल्फेट का 2 मोल चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने सॉल्यूशन में Ag+ डालना शुरू किया तो पहले क्या होगा? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO3 2- बहुत ज्यादा है तो पहले ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। फिर आप धीरे धीरे इसमें Ag+ अगर और डालते जाओ तो एक टाइम आएगा जब इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? Ag और H2O3 2- का दोनों का कॉन्सेंट्रेशन ऑलमोस्ट 1:1 हो जाएगा, ठीक है। 1 मोल, ये भी 1 मोल, ठीक है। या फिर ऐसे कर दो, ये 2 मोल और ये भी 2 मोल, ऐसे अच्छे से, ठीक है। तो 1:1 के रेशियो में हो गया। तो उस केस में आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, यहाँ पे फिर आपकी पीपीटी बन जाएगी, ठीक है। पीपीटी बनाने के लिए सल्फर का कॉन्सेंट्रेशन और ज्यादा होना चाहिए। Ag का कॉन्सेंट्रेशन ट्वाइस हो जाना चाहिए, मतलब इसका 4 मोल और H2O3 का, ये तो हम बाहर से ऐड नहीं कर रहे हैं तो ये 2 मोल ही रहेगा। और इस सिचुएशन में आपका क्या हो जाएगा? पीपीटी बन जाएगी, ठीक है। इस सिचुएशन में आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ठीक है। तो
इस तरह से आपका Ag2H2O3 2 माइनस बनेगा, Ag2H2O3 बनेगा, ठीक है। इसको हीट करो तो फिर आप ये Ag2S, जनरली जितने भी थायोसल्फेट्स आपको मिलेंगे सबको आप हीट करो तो H2SO4 और Ag2CO3 बनेगा, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है आपको। H2O3 2 माइनस डिस्प्रोपोर्शनेट करता है H2 माइनस में और SO3 ऐसे कैसे, SO3 नहीं होगा, SO3 जनरली H2SO4 के फॉर्म में लिखता है, H2SO4, ठीक है। वाटर के साथ ये भी ये बना, ऐसे आप लोग इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2, यहाँ पे -2, यहाँ पे +6, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनेट इस तरह से करना है। नेक्स्ट इज ये सॉल्युबल हमारा, हमने बोला था NH3 के अंदर क्या होता है, सारे NH3 और Cn- के अंदर ऑलमोस्ट सारे आपको सिल्वर के जो PPTs होंगे वो डिसॉल्व कर जाएंगे कॉम्प्लेक्स मैनर पे, ठीक है। फिर एक्सेस आपने Na2H2O3 अगर पास कर दिया तो अगेन ये इक्विलिब्रियम क्या होगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, इन एक्सेस हाइपो, ठीक है। हाइपो नाम इंपॉर्टेंट है, हाइपो आप लोगों ने सुना होगा, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन है, ठीक है। I2 + H2O3 2 - I- + S4O6 2 -, तो एक्सेस में भी ये क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा। अदर दूसरा तरीका इसको डिसॉल्व करने का है कि HNO3 से रिएक्ट करा दो, नाइट्रेट बना लेगा, ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? यस सर। नेक्स्ट इज अ टेस्ट विद PbNO3। सब टेस्ट इसका Ag+ जैसा ही रहेगा, ठीक है। पहले डिसॉल्व किया, फिर एक्सेस पास किए तो व्हाइट PPT बना, फिर आपने क्या किया, इसको हीट किया तो ब्लर का PbS बन गया, एक्सेस पास किया तो फिर से डिसॉल्व हो गया, ठीक है। जस्ट लाइक Ag+, HgNO3 के साथ क्या केस होगा, HgNO3 या फिर BiNO3 के साथ ये PPT बनाएगा। ऑल ऑफ थायोसल्फेट्स आर व्हाइट इन कलर, और थायोसल्फेट्स आपके सारे क्या होंगे, व्हाइट होंगे। फिर इसको आपने हीट किया तो ब्लैक ये मिला, Bi2S3 ब्राउन ब्लैक, एक्सेस में पास किया तो डिसॉल्व, सारे सेम रिएक्शंस जस्ट लाइक Ag+। उसके बाद आप इसका कुछ रिडॉक्स बेस्ड टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है। रिडॉक्स बेस्ड टेस्ट में हमारा क्या होगा, आप इसको किसी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में क्या होगा, ये डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, ठीक है, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के केस में क्या होता है, हल्का सा ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब बहुत पावरफुल नहीं है, तो यहाँ पे आपका सल्फर कहाँ से कहाँ गया, +2 से चला गया आपका सल्फर +2.5 पे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है तो यहाँ पे क्या होगा, सल्फर +2 से आपका सीधे +6 पे चला जाएगा, विच इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल फॉर योर सल्फर, ठीक है। तो इस तरह से रिएक्शन, बाकी ये एक इंफॉर्मेशन है, जस्ट यू कैन रिकॉल फ्रॉम पी ब्लॉक, ये इंफॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ डिफरेंट आयोडीन के केस में देखो, आयोडीन इज जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लेकिन ब्रोमीन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, फ्लोरीन इज आल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, तो ये ट्रेंड आप याद रख सकते हैं। ये रिएक्शन अगेन आपका वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन से आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में आयोडोमेट्री, आयोडीमेट्री रिएक्शंस, ठीक है। उसमें ये सब हम लोग देखते हैं, I- हमारे H2O3 2- से रिएक्ट करके, सॉरी I2 हमारा इससे रिएक्ट करके I- पे रिड्यूस हो जाता है और इसको ऑक्सीडाइज कर देता है टेट्राथायोनेट आयन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं ताकि छोटे छोटे चंक्स में सबको याद कर दीजिए, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे पिछले पेज में जो रिएक्शन हमने शॉर्ट में लिखा है, यहाँ पे ये सारे रिएक्शंस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाले,
उसी को यहाँ पे इलेबोरेट किया है। Fe+3 इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। तो इस तरह से ये रिएक्शन रहता है, पहले डार्क वायलेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर ये रिड्यूस हो जाएगा, Fe+3 येलो होता है, Fe+3 सिमिलरली कॉपर इज आल्सो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। तो S4O6 माइनस S4O6 माइनस इस तरह से बनाना है, ठीक है। ये सब कॉम्प्लेक्स उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको थोड़ा चार्ज वगैरह बैलेंस करके ये रिएक्शंस बैलेंस करने आना चाहिए, ठीक है। इसके तरफ जैसे अगर हमने दे दिया Cu(H2O3)2, इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो आपको ये चीज याद रखना चाहिए, +2 होता है और इसका -2 होगा, तो बाहर कितना बूस्ट हो गया। तो इस तरह से चार्ज वार्ज बैलेंस करने आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, ठीक है। ओके, हाँ क्लोरीन वाटर के साथ ये टेस्ट होता है, लेकिन हम लोग उसको लैब में वेरीफाई नहीं कर सकते, ठीक है। क्लोरीन वाटर ब्रोमीन वाटर से क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है। हम लोगों ने अभी देखा क्लोरीन और ब्रोमीन में क्या होता है, क्लोरीन इज मोर ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। बट बिकॉज क्लोरीन का कलर क्या होता है, Cl2 गैस का भी कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, Cl- का भी कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, कलरलेस होता है। तो इसलिए आपको कुछ विजिबल चेंज नहीं दिखेगा, ठीक है। Whereas in the case of bromine, bromine गैस आपको ब्राउन कलर का दिखेगा, सॉल्यूशन आपका कलरलेस होगा। ब्रोमीन वाटर के केस में कलर चेंज आपको ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक है। And this is the reason why although chlorine is a more powerful oxidizing agent, हम लोग इसको यूज नहीं करते क्योंकि हम लोग को चेंज रिएक्शन में दिखता ही नहीं। Is it clear to everyone? ठीक है। और यही रीजन है कि जब भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए हम लोग को कोई एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, ठीक है। अगर हम लोग को एसिडिक मीडियम चाहिए होता है तो हम लोग HCl यूज नहीं करते, ठीक है। HCl यूज नहीं करते। Why we don't use HCl? Because HCl is a powerful reducing agent। और दूसरे कंपाउंड जिससे आपको रिएक्ट कराना है इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, वो रिएक्ट नहीं करेगा, आपका फ्लोरीन ही रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो गलत रिजल्ट नहीं है, इसलिए जब भी एसिडिक मीडियम हमें चाहिए होता है तो वी डोंट यूज HCl। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. ओके, फिर यहाँ पे कुछ कुछ ब्लीचिंग रिएक्शंस हैं, ब्लीचिंग रिएजेंट्स जो हम लोग इनऑर्गेनिक में यूज करते हैं। पहला होता है हमारा क्लोरीन वाटर। क्लोरीन वाटर नेसेंट ऑक्सीजन जनरेट करता है एंड विच इज अ वेरी पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये परमानेंट ब्लीच होता है इसका, ठीक है। लिटमस पेपर को या फिर किसी कपड़े को आप इससे परमानेंटली ब्लीच कर सकते हैं, मतलब पूरा व्हाइट हो जाएगा आपका, ठीक है। ओजोन इज आल्सो यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट समटाइम्स, यहाँ से भी आपको नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है मिल जाता है। SO2 इज आल्सो एन क्या बोलते हैं ब्लीचिंग एजेंट, लेकिन ये क्या होता है माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट होता है, यहाँ पे आपको नेसेंट ऑक्सीजन नहीं होता, हाइड्रोजन के कारण होता है। दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नेसेंट ऑक्सीजन का जो इफेक्ट होता है दैट इज परमानेंट इन नेचर। हाइड्रोजन का, नेसेंट हाइड्रोजन का क्या होता है, दिस इज टेम्पररी। दिस इज समथिंग अबाउट ब्लीचिंग रिएजेंट्स। Then another very important reaction for ITG, heating of hypo। हाइपो को हीट करने पे क्या होता है, सबसे पहले आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चला जाता है, ये पांचों क्या हुआ, -5:2 हो गया इधर से। फिर फर्दर इसको आप हाई टेम्परेचर पे हीट करो तो ये क्या बनता है, Na2S5 बनाता है। This was a question which was asked in IIT-JEE। उसके पहले ये कोचिंग में पढ़ाया नहीं जाता था ये रिएक्शन, उसके बाद से पढ़ाया जाने लगा। तो S5 हमारा ऐसा होता है, ये सॉल्ट हमारा बनता है हाई टेम्परेचर, यहाँ पे N+, इसको आप लोग याद रखो, ये तो डिस्प्रोपोर्शनेशन है। ये बहुत टाइप का डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कोई बता सकता है? यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? -2/5.
ठीक है, यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6. So again this is a disproportionation reaction. ठीक है, this reaction is very important. Okay, आगे बढ़ते हैं. Another test for thiosulfate. This is a very important test. साइनाइड आयन की प्रेजेंस, साइनाइड आयन अगर आप इसमें डालो, KCN से आता है CN-, और मीडियम रखो कैसा, बेसिक. ठीक है, तो यहाँ पे SCN- फॉर्म होता है. SCN- को आप वेरीफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको Fe+3 से रिएक्ट कराएंगे. ठीक है, Fe+3 से रिएक्ट कराने में क्या होगा, दिस फॉर्म्स ब्लड रेड PPT ऑफ FeSCN मोलेक्यूल. ठीक है, और फिर इस रेड PPT को अगर आप रिएक्ट कराओ Hg+2 से, तो ये व्हाइट कलर का HgCN2 बना देगा. या फिर इसमें अगर फ्लोराइड आयन आप डालो तो फिर ये कॉम्प्लेक्स आपका ब्रेक हो जाता है एंड दिस फॉर्म्स कलरलेस सॉल्यूशन. ठीक है, तो एक्चुअली ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है. कुछ जगह यहाँ पे PPT दिया होता है, कुछ जगह यहाँ पे कलर दिया होता है, ब्लड रेड कलर. तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हैं. ठीक है, ये हमने डायग्राम वगैरह थोड़ा दिया है. यहाँ पे आयरन नेल का जैसे यहाँ पे दिखाया है. ठीक है, आयरन नेल को अगर SCN- कैसे मिल जाए तो ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन. बच्चों लोग को ये एक्सपेरिमेंट बहुत पसंद आता है, छोटे बच्चों को. आयरन नेल से खून निकल रहा है, तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है. ठीक है, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बेसिकली यहाँ पे होता ये है, ये जो आपका H2O3 2- है, हमने अभी बताया ना, H2O3 2- डिस्प्रोपोर्शनेट कर जाता है सल्फर प्लस SO3 2-. ठीक है, और ये सल्फर पोर्शन आपका CN- से रिएक्ट करके SCN- बनाता है. ठीक है, ये टेस्ट एक बार और आएगा जब हम लोग Fe+3 के बारे में देखेंगे, वहाँ पे ये टेस्ट फिर से आएगा. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये लास्ट आयन हम लोग करते हैं, इसके बाद बोलते हैं. नेक्स्ट टेस्ट इज दिस एसीटेट आयन. एसीटेट्स क्या होते हैं, सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट फॉर दिस एंड दिस. ठीक है, दीज आर स्पारिंगली सॉल्युबल और यू कैन से इनसॉल्युबल. कुछ कुछ एसीटेट हमारे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बेसिक एसीटेट बनाते हैं. ठीक है, जैसे हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, बेसिक कार्बोनेट कौन बनाते थे, याद है बोल को किसी को, कौन से कटायंस होते थे जो बेसिक कार्बोनेट बनाते थे? PbZn Cu Mg. वेरी गुड, श्रेया एकदम अच्छे से पढ़ रही है. PbZn Cu and Mg. ठीक है, ये सब कटायंस हमारे क्या होते थे, बेसिक कटायंस, मतलब बेसिक कार्बोनेट्स बनाते हैं. सिमिलरली ये जो कटायंस होंगे हमारे 3 ब्रदर्स, रिटर्न ऑफ 3 ब्रदर्स, ये क्या करेंगे, बेसिक आपका ये बनाएंगे एसिड. तो अगेन कलर सबका सेम ही है, ब्राउन व्हाइट और ग्रीन. व्हाइट, ब्राउन एंड ग्रीन, ये आपका एसिटेट्स होता है. सबसे पहला टेस्ट विद एसिड. टेस्ट विद एसिड ये क्या रिलीज करेंगे, CH3COOH. CH3COOH का कैरेक्टरिस्टिक है, इसका स्मेल कैसा होता है, विनेगर जैसा होता है, विनेगर लाइक स्मेल. तो इससे आप एसिटेट वेरीफाई कर सकते हैं. इसके अलावा एसिटेट और फॉर्मेट के बीच हम लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, तो ये Ag+ कटायन से यूज करते हैं. पहले दोनों व्हाइट PPT बनाएंगे, सिल्वर फॉर्मेट और सिल्वर एसिटेट का. हीट करने पे ये क्या होता है, ये ब्लैक कलर का सिल्वर का प्रेसिपिटेट दे देगा, और इसको अगर आप हीट करो तो ये डिसॉल्व कर जाता है. ठीक है, अमोनिया से पास करो तो ये डिसॉल्व कर जाता है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एसिटेट आयन एंड फॉर्मेट आयन एंड एसिटेट आयन. एक को हीट करने पे क्या होगा, प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाएगा, एक को हीट करने पे प्रेसिपिटेट ब्लैक हो जाएगा. ठीक है, ये टेस्ट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. ये टेस्ट तो ये तो आपको याद ही होगा, एसिटेट के साथ ये क्या करता है, डीप रेड कलर का सॉल्यूशन बनाता है. दिस इज न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आता है. इसको याद है कहाँ आता है, फिनॉल के साथ फिनॉल के साथ रिएक्शन. तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट यहाँ पे एसिटेट आयंस के लिए भी यूज होता है. यहाँ पे एसिटेट का डीप रेड कलर का सॉल्यूशन होता है, जिसमें अगर आप एक्सेस ऑफ वाटर पास करो
क्या होता है ये ब्राउन रेड पीपीटी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, ब्राउन रेड पीपीटी बेसिक एसिड बना देता है, बेसिक फिर एसिड। ओके, तो इस सॉल्यूशन का नाम न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट क्यों है? क्योंकि हम लोग को सॉल्यूशन का पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। पीएच हमारा न्यूट्रल होना चाहिए सॉल्यूशन का, इसलिए हम लोग NH4OH यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्या है, वीकली एसिडिक होता है। दिस इज अ वीक एसिड, HCl वगैरह बनाता है, FeOH, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, दिस इज अ वीक बेस, यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर देता है, सॉल्यूशन हमारा न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज द टेस्ट ऑफ प्योर एसिटेट अनायन। दो और इम्पोर्टेंट टेस्ट है एसिटेट अनायन के, एस्टेरिफिकेशन, तो ये तो सबको पता होता है, किसी अल्कोहल से इस पर रिएक्ट करो विनेगर को इन कॉन्सेंट्रेटेड एस्टर्स, तो ईस्टर बन जाता है, ठीक है। ईस्टर्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसका स्मेल क्या होता है, फ्रूटी होता है, फ्रूट के जैसा स्मेल होता है। दिस इज कैल्कोडाइल टेस्ट, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है हमारा, दैट इज पॉइजन, ठीक है। तो इसको हम लोग लैब में नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, ये भी एक टेस्ट है, कैल्कोडाइल टेस्ट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज कैल्कोडाइल ऑक्साइड। ओके, किसी को कुछ डाउट है? ओके, तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से रिवाइज करो, कल से हम लोग नाइट्रेट अनायन से करेंगे। ओके, किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ओके, चलो ठीक है। ये रिवीजन का तरीका ठीक है ना, या फिर आप जैसे बोलो, हम अगर क्लास की फ्रीक्वेंसी मतलब कम क्लास में जल्दी से कवर कर दे, या फिर धीरे धीरे कर? इज इट ओके अभी जैसे चल रहा है वैसे? Yes, sir. ये चलो ठीक है। आप में से किसी को अगर कुछ डाउट हो तो मेरे को कॉल कर सकता है बिटवीन 12 to 2, ठीक है, 12 से 2 के बीच। कुछ अगर डाउट हो, कुछ क्वेश्चंस चाहिए हो, कुछ शीट चाहिए हो प्रैक्टिस के लिए, यू कैन जस्ट कॉल मी, और व्हाट्सएप पे तो फिर ठीक है। चलो ठीक है, अच्छे से रिवाइज करो इसको। थैंक यू वेरी मच।